मृत्युंजय तिवारी यानी कि मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। ये आज का टॉपिक है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, द मोस्ट बेसिक टॉपिक ऑफ फिजिक्स 11th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे वी ऑल नो दैट, देखिए सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, व्हाई दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, आपको कुछ भी आप डेली लाइफ में देखते हैं, आप सभी को पता है कि अगर कोई चीज़ को आप चलिए बोल दीजिए कि भाई 1 किलो आलू दे दो। व्हाट इज किलो? किलो तो कुछ होता ही नहीं है, किलोग्राम होता है। लेंथ, मास, टाइम, दीज आर सम क्वांटिटीज, दीज आर सम फिजिकल क्वांटिटीज जिसको मेजर करना पड़ता है। तो इसीलिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ these general life examples as well as our examination point of view. So examination as well as to understand the theory also. Okay, so we'll start with the units and measurements. So first of all, what is unit? Units is the standard measurement of any quantity is called units. So we like there are certain many types of units has been defined by the people. So there are like in India or in US, or so there are some systems which are defined. First of all, CGS system. CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो सेंटीमीटर आपका यूनिट हो गया लेंथ का, ग्राम इज मास, सेकेंड इज टाइम। और उसी प्रकार और भी 3 नियम यानी कि और भी 3 टाइप्स, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, and FPS foot pound second, and the last but not the least, this is the standard international which is followed by all the territories everywhere in the physics, chemistry, mathematics or anything you consider. So this is standard international in which the unit of length will be meter, unit of mass will be kilogram, and unit of time will be second. So now we'll see some quantities, like these quantities are defined into 2 types. So first of all, there is one type which is called as derived quantities. First of all, we call it not derived. First we'll see fundamental quantities. Fundamental. So what is fundamental quantity? So name itself says what it says. Fundamental यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं ऐसा क्वांटिटी जिसके ऊपर या जिस क्वांटिटी पे सारा का सारा यूनिट्स या डायमेंशंस का सारी चीजें डिपेंड करेंगी, यानी कि बेसिक क्वांटिटीज। तो ऐसे 7 क्वांटिटीज हैं। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमारे पास आ जाता है लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम, ये है हमारा 3 मेजर क्वांटिटी। 3 मेजर क्वांटिटीज आर देयर। सो इट इज लाइक लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। ऑल अदर्स आर लाइक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। Okay, so there are certain fundamental quantities. What is fundamental quantity? First of all, the physical quantity which do not depend on any other quantity. These are like very independent. These are very independent. So first of all, length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance. These are basic fundamental quantities. So what are the units? So SI unit of length is meter, mass is kg, time is second, temperature is Kelvin, current is ampere, luminous intensity is basically candela, CD, and amount of substance is mole. So there are certain fundamental quantities on which every other quantities are dependent. It does not depend on any other quantity. Basically this is fundamental quantity. Okay, after that another part of this is derived quantities. I think you can write it down if you want. So other part is derived quantity. Derived quantity will be so what are derived quantities? Derived quantities depends on fundamental quantities basically. So we'll consider the example of work. Work is equal to
force into displacement. So what is work is equal to force into displacement. What is displacement? Displacement is nothing but the distance between 2 points, or it is a distance, but it is like when we talk about displacement is something where a person or an object which moves from one point to another point, or the total round or anything which we can consider. First of all, let's say we'll consider an example. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं. डिस्टेंस यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि समझ लीजिए आप, डिस्प्लेसमेंट आप यहां से गए पॉइंट ए से बी तक, बी से सी, सी से डी, एंड डी से अगेन ए. सो यू आर ट्रैवलिंग दिस मच. ठीक है, सी डी, इतना आपने ट्रैवल कर लिया. अब देखिए, ये मान लीजिए 10 मीटर, ये है 5, ये 10 और फिर से 10. टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया हमने? कितना डिस्टेंस कवर किया हमने? 10, 5, 15, 25 और मान लीजिए 5 ही है ये, 30. तो हमने टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया 30 मीटर. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ? 0. क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सिमिलर. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? इट इज मीटर, एंड द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. सो न्यूटन मीटर, which is also called as joule, which is also called as joule. So now we'll understand what is न्यूटन. न्यूटन को कैसे करेंगे हम लोग? तो इसके लिए देखना पड़ेगा हमें फोर्स. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन. अब हमको पता है मास, मास का यूनिट क्या होता है? केजी. मास का यूनिट होता है केजी. एक्सिलरेशन का यूनिट क्या होता है? एक्सिलरेशन का यूनिट निकालना है. अब चलिए एक्सिलरेशन का यूनिट निकालते हैं. एक्सिलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब यहां पे टाइम भी पता चल गया, सेकेंड. अब हमें टाइम पता है, सेकेंड. अब वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये आ गया डिस्प्लेसमेंट पे, यानी कि मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड. अभी वेलोसिटी मिल गया. अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? यहां पे डाल दिया हमने मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया. अब हम लोग आ जाते हैं फोर्स पे. फोर्स पे मास इंटू एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हो गया फोर्स का मतलब. अब हमने इसी को डाल दिया जूल के जगह पे, यानी कि वर्क के जगह पे. सो इट इज व्हाट इट इज. वर्क इज इक्वल टू वर्क, यूनिट ऑफ वर्क विल बी न्यूटन, यानी कि न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अनदर मीटर विच इज मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क. सो विल अंडरस्टैंड. सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज वर्क, फोर्स, एक्सेलरेशन. ये सारा बेसिक डिराइव्ड यूनिट्स है जो कि डिराइव किया जाता है लेंथ, मास, टाइम, इन तीनों यूनिट से. अभी इन सारी चीज़ों को समझने के लिए या फिर इन सारे यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट दिया गया, और ये इन सारी चीज़ों को कहते हैं हम लोग डायमेंशंस. अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज डायमेंशन. यहाँ पे डायमेंशन की बात करेंगे तो 3 चीज़ें हैं हमारे पास. सो मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज से डायमेंशंस को बनाया गया. तो डायमेंशंस अभी बताता हूं मैं आप लोगों को. पहली बात तो डायमेंशंस को बनाया गया 3 बेसिक क्वांटिटीज से, फंडामेंटल क्वांटिटीज से. लेंथ, मास एंड टाइम. दिस इज व्हाट? लेंथ, मास, टाइम. इसका एक पैटर्न होता है लिखने का. इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लेंथ, मास, टाइम को लिखा जाता है. ठीक है, अब लेंथ, मास, टाइम को हमें एक्सप्रेस करना है, यानी कि सबसे पहले हमें पता है कि लेंथ यानी कि मीटर. सो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, एंड मास इज व्हाट? केजी, टाइम इज सेकेंड. तो अब हम समझते हैं कि ये कैसे करेंगे. ठीक है, चलो एक डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल लेते हैं. ओके, पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज लेते हैं. लेट्स से इट इज लेंथ. तो लेंथ का यूनिट होता है व्हाट? यूनिट इज मीटर. व्हाट इज द यूनिट? मीटर.
सो मीटर का यूनिट है, तो मीटर यानी कि m, हम लोग मीटर की बात करें यानी कि m की बात करें, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, इट इज l, हम लोग बात करें l की, L1 m0 एंड t0, ठीक है, हम लोग बात करें लेंथ की, ठीक है, लेंथ L1 m0 t0, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द डायमेंशनल क्वांटिटी। ओके, अब बात करेंगे हम लोग मास की। मास कैसे लिखेंगे, मास का यूनिट होता है kg, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, लेंथ L0 m1 t0, इट इज रिटन लाइक दैट, ठीक है। अभी अगला बात करेंगे हम लोग किसका, टाइम की। टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम होता है सेकेंड, सेकेंड, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, लेंथ L0 m0 एंड t1, इसको ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि गुणधर्म क्या क्या है। चलिए मान लीजिए हम लोग क्वांटिटी की बात करते हैं, ले लीजिए वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी यानी कि v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट s अपॉन t, लेट से आई एम कंसिडरिंग दिस, v इज इक्वल टू s अपॉन t, सो व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम, तो यूनिट क्या हो गया इसका, मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। अब व्हाट विल बी द डायमेंशन, डायमेंशन देखिए इसका, डायमेंशन है l, यहां पे मीटर है राइट, L1 ऊपर L1 m0 t0, मीटर का हो गया, अपॉन L0 m0 एंड t1, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, सर डिनोमिनेटर में t1 है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को इसका, आप सभी को पता है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज पावर में होती है तो उसको ऊपर ले जाने के बाद वो निगेटिव में आ जाता है, ठीक है, इट इज बेसिकली द इनवर्स, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा L1 1 माइनस 0 1 m0 एंड 0 माइनस 1 t माइनस 1, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज व्हाट डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। चलो अभी हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का एग्जांपल देखते हैं, तो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए एक्सीलरेशन, वेलोसिटी का आपको डायमेंशन पता है, डायमेंशन देखिए, आपको किसका डायमेंशन पता है, वेलोसिटी का डायमेंशन पता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, L1 m0 एंड t माइनस 1। अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर से बेसिक्स में जाइए, पीछे जाइए, फिर से फॉर्मूला में जाइए। सो दीज ऑल आर कनेक्टेड बिकॉज दिस इज ऑल डिपेंडेंट, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी, ओके, इट डिपेंड्स ऑन दीज काइंड ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज विच आर लेंथ, मास एंड टाइम, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया वेलोसिटी। अब इसके यहां पे बॉटम में क्या आ जाएगा, सिर्फ टाइम की बात कर रहे हैं, आप L0 m0 को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, आप सीधा सीधा यहां पे t1 लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा फाइनली, L1 m0 t माइनस 2, सो दिस इज व्हाट द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, ओके। तो ऐसे ही आप कुछ और डायमेंशंस अपने घर पे ट्राई कीजिए अगर कोशिश करें तो। और चलिए मैं बताता हूं आपको क्या क्या ट्राई करना है। आपको वर्क का डायमेंशन निकालना है और फोर्स का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। आप इन सारी चीज़ों का डायमेंशन निकालिए, प्रेशर का डायमेंशन निकालिए, प्रेशर का निकालिए, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनके डायमेंशंस आप निकालिए, या तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, विल गेट बैक टू यू फॉर योर डाउट्स, ओके। थैंक यू सो मच।